Welcome back students. In this video we are going to discuss about columnar purchase book. Simple purchase book illustration 1 किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से के ट्रांजैक्शन वहाँ पे रिकॉर्ड होते हैं. We have studied about it. Now we are moving to columnar purchase book. So let's start. We have seen that columnar purchase book can be prepared in two ways. Columns according to types of goods and columns for goods and expense. Now, first we will study about columnar purchase book according to types of goods. When a businessman purchases goods of more than one type, columnar purchase book for each type of goods is prepared instead of simple purchase book to know the details and information about each variety of goods. For example, when a businessman purchases only TV, then he would prepare simple purchase book. But if a businessman purchases TV, refrigerator and floor mills, then he will prepare columnar purchase book. In the page number 112, the specimen of columnar purchase book according to types of goods का जो फॉर्मेट है वो दिया गया है. First of all, the column of date, thereafter name of supplier, thereafter invert invoice number, LF number. चार कॉलम सेम है, डेट, नेम ऑफ सप्लायर, इन्वर्ट इनवॉइस नंबर एंड LF नंबर. सिंपल में क्या था, सिर्फ वन कॉलम फॉर अमाउंट इज अवेलेबल. क्लियर. जितने भी गुड्स हैं उसकी सारे गुड्स के टाइप्स की अलग अलग कॉलम बनेगी. यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया टीवी, रेफ्रिजरेटर एंड फ्लोर मिल. तो फर्स्ट अमाउंट उसकी सब डिवीजन में होगा टीवी, रेफ्रिजरेटर एंड फ्लोर मिल एंड देयर आफ्टर द फाइनल कॉलम इज फॉर टोटल अमाउंट ऑफ ऑल थ्री प्रोडक्ट्स. क्लियर. उस हिसाब से जितने भी गुड्स होंगे उस हिसाब से उसकी कॉलम बनती जाएगी इन कॉलमनर परचेस बुक. From the above specimen, it can be seen that the rest of details remain same as that of simple purchase book. Only in the amount column, some more columns are added. Separate column is kept for each type of different goods. In addition to this, a column showing total purchase is kept as the last column. The total of the amount of various goods purchased from one party which are noted in the individual column is mentioned in the last column. Based on this type of purchase book, one can ascertain credit purchase of each type of goods as well as the total credit purchase from a particular supplier. We can see from the specimen that the businessman purchased TV, refrigerator and floor mill on credit and has prepared columnar purchase book to record transaction in respect thereof. In the same way, cloth merchant doing business of pant, shirt and gown prepare column purchase book with three columns: pant, shirt and gown. In short, the number of columns depends on the number of item purchased on credit by trader. चार कॉलम जो पहले की थी वो सेम रहती है जैसी सिंपल परचेस बुक में थी. फिर बाद में कितनी कॉलम ऐड होगी, जितने टाइप्स ऑफ गुड्स कोई भी बिजनेसमैन ने परचेज किया है उस हिसाब से कॉलम ऐड होंगी. एंड लास्ट कॉलम इज फॉर टोटल अमाउंट, ताकि एक सप्लायर के पास से अलग अलग चीज जो हमने परचेज की है उसका टोटल कितना है, टोटल अमाउंट उसको कितनी पे करनी है वो अमाउंट हम जान सके और इंडिविजुअल किस प्रोडक्ट की कितनी अमाउंट है वो भी हम जान सके. सो लेट्स अंडरस्टैंड विद द इलस्ट्रेशन नंबर 2. From the following information, prepare columnar purchase book in the books of Shriji Furniture Mart. Shriji Furniture Mart deals in purchase and sales of tables, chairs and cupboard. यहाँ पे श्रीजी फर्नीचर मार्ट की परचेस बुक बनानी है जो कि परचेस और सेल करता है टेबल्स, चेयर्स एंड कपबोर्ड. उसका बिजनेस करता है कौन, श्रीजी फर्नीचर मार्ट. अब उसकी हमें परचेस बुक बनानी है कॉलमनर परचेस बुक. First example is, first transaction is 2015 April 1. Purchased from Shri Ram Furniture Mart 10 pieces table at rupees 1000 per piece.
15 pieces chairs at rupees 600 per piece and 5 pieces cupboard at rupees 3000 per piece. Credit period 1 month and invoice number 99. श्रीजी फर्नीचर मार्ट, ये है बिजनेसमैन, वो बिजनेस करता है सेलिंग एंड परचेज ऑफ दिस टाइप ऑफ फर्नीचर. नाउ उसने श्री राम फर्नीचर मार्ट से 10 पीसेस टेबल परचेज किए और एक पीस टेबल की प्राइस है 1000 रुपीज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जितने टेबल उसने परचेज किए उसकी टोटल प्राइस कितनी हुई हमें वो फाइंड करनी पड़ेगी. ये है फर्स्ट ट्रांजेक्शन, फर्स्ट डेट का ट्रांजेक्शन. टेबल कितनी परचेज की है 10 पीसेस टेबल एंड 1000 रुपीज ईच. उसने 1000 रुपीज की एक टेबल थी, ऐसी 10 टेबल परचेज की है. सो द टोटल अमाउंट ऑफ 10 टेबल्स इज 10,000. 10 पीसेस इनटू प्राइस पर पीस. क्लियर, समझ में आ रहा है, इजी है. एक पीस की प्राइस है 1000, सो 10 पीसेस की कितनी होगी 10,000. उसके बाद है चेयर. 15 पीसेस चेयर्स एट 600 पर चेयर. एक चेयर की कीमत है 600, ऐसी उसने 15 चेयर परचेज की. सो द टोटल अमाउंट फॉर चेयर इज 15 इंटू 600 इज 9000. 15 चेयर जिसकी प्राइस एक चेयर की है 600, 15 चेयर्स की प्राइस होगी 9000. उसके बाद है कपबोर्ड एट 3000 पर पीस. ऐसे 5 पीसेस कपबोर्ड उसने परचेज किए जिसकी एक कपबोर्ड की प्राइस थी 3000. नाउ कपबोर्ड 5 पीसेस इनटू प्राइस पर पीस इज इक्वल टू 15,000. ये मिल गई हमें तीनों प्रोडक्ट की प्राइस. यहाँ पे कुछ भी डिस्काउंट किया नहीं है तो यही हमारी हो जाएगी अमाउंट, नेट अमाउंट. टेबल 10,000, चेयर्स 9,000 एंड कपबोर्ड 15,000. अब यहाँ पे इस तरह से फॉर्मेट बनेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल परचेज बुक ऑफ श्रीजी फर्नीचर मार्ट. फर्स्ट कॉलम इज फॉर डेट, सेकंड कॉलम इज फॉर नेम ऑफ सप्लायर, इनवर्ट इनवॉइस नंबर, एलएफ नंबर. अब देखो यहाँ पे ऊपर पहले लिखा जाएगा अमाउंट. अमाउंट के नीचे और 3 कॉलम होंगे. कितनी प्रोडक्ट्स है यहाँ पे टेबल, चेयर एंड कपबोर्ड. 3 प्रोडक्ट्स हैं, उसकी इंडिविजुअल कॉलम बनेगी एंड देयर आफ्टर टोटल अमाउंट. यहाँ पे अमाउंट किसकी टेबल, चेयर और कपबोर्ड की, और लास्ट कॉलम इज फॉर तीनों की टोटल अमाउंट. क्लियर. सो फर्स्ट ट्रांजेक्शन जैसे पहले ईयर, फिर मंथ एंड देयर आफ्टर डेट. फर्स्ट किसके पास से परचेज किया है श्री राम फर्नीचर मार्ट. यहाँ पे सप्लायर कौन है श्री राम फर्नीचर मार्ट. अकाउंट इनवॉइस नंबर इज गिवन विच इज 99. एलएफ नंबर इज नॉट गिवन. नाउ द अमाउंट ऑफ टेबल कितनी है 10,000. द अमाउंट ऑफ टेबल इज 10,000. The amount of chair is 9,000 and the amount of cupboard is 15,000. यहाँ पे इंडिविजुअल जितनी भी प्रोडक्ट है उसकी टोटल अमाउंट लिखनी है. टेबल 10,000, चेयर 9,000 एंड कपबोर्ड 15,000. नाउ ये तीनों का टोटल आएगा टोटल अमाउंट में 34,000. इट मीन्स दैट श्रीजी फर्नीचर मार्ट में श्रीराम फर्नीचर मार्ट के पास से टोटल 34,000 का गुड्स परचेज किया, फर्नीचर परचेज किया, जिसमें 10,000 की उसने टेबल परचेज की है, 9,000 की चेयर्स परचेज की है एंड 15,000 के कपबोर्ड परचेज किए हैं. समझ में आ रहा है किस तरह से एंट्री की है. और ये सारी परचेजेस किस बेसिस पे की है क्रेडिट परचेज. क्रेडिट पीरियड इज 1 मंथ. क्लियर. इस तरह से ट्रांजैक्शन इसमें रिकॉर्ड होंगे. अब 5th डेट का जो ट्रांजैक्शन है परचेज फ्रॉम श्री कृष्णा फर्नीचर मार्ट 10 पीसेस टेबल एट 1200 पर पीस एंड 12 पीसेस कपबोर्ड एट 2500 पर पीस एट 10% ट्रेड डिस्काउंट. इनवॉइस नंबर 126 रिसीव्ड. हाफ ऑफ द अमाउंट इज पेड इमीडिएटली बाय कैश. देखो
यहाँ पे हाफ अमाउंट कैश में पे की है, लेकिन जैसा मैंने पहले आपको बताया था, हाफ पार्शियल अगर कैश क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो तो पूरा हमें क्या करना है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन ही कंसीडर करना है। तो ये ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। यहाँ पे एक और है टॉपिक 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब ये कैसे कैलकुलेट करना है, सबसे पहले यहाँ पे दो ही चीज परचेस हो रही है, टेबल एंड कपबोर्ड। चेयर्स यहाँ पे परचेस नहीं कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 10 पीसेस टेबल 1200 each, so the total amount for 10 table is 12,000 और 10% क्या है, ट्रेड डिस्काउंट। तो 12,000 के ऊपर 10% ट्रेड डिस्काउंट इज डिडक्टेड, so 1200, so the net amount will be 10,800। क्या करना है, सबसे पहले टेबल की अमाउंट फाइंड करनी है, 10 टेबल्स, 10 इंटू प्राइस पर टेबल मिलेंगे 12,000, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट 10% माइनस करना है विच इज 1200, सो वी विल गेट नेट अमाउंट 10,800। उसी तरह से कपबोर्ड 12 pieces of cupboard 2,500 per piece, so the amount of 12 cupboards is 30,000. Same 10% rate discount is deducted from 30,000. 30,000 के 10% 3,000 and 30,000 minus 3,000 is equals to 27,000 which is net amount। रिकॉर्ड क्या होंगी, नेट अमाउंट रिकॉर्ड होगी आफ्टर डिडक्शन ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। सो डेट 5 किसके पास से परचेस कर रहे हैं, श्री कृष्णा फर्नीचर मार्ट अकाउंट। इनवॉइस नंबर इज 126, LF नंबर डैश। टेबल की नेट अमाउंट कितनी है, 10,800। चेयर्स नहीं परचेस कर रहे हैं तो चेयर्स की कॉलम में डैश। कपबोर्ड नेट अमाउंट इज 27,000। अब ये दोनों का टोटल 37,800 बाहर। क्या मतलब हुआ इसका, श्री कृष्णा फर्नीचर मार्ट के पास से टोटल 37,800 के फर्नीचर परचेस किए, जिसमें 10,800 इज फॉर टेबल एंड 27,000 इज फॉर कपबोर्ड। क्लियर। नेक्स्ट इज a cycle purchase from Shivam Cycle Stores at 3,500। अब देखो यहाँ पे फर्नीचर मार्ट, श्रीजी फर्नीचर मार्ट फर्नीचर का बिजनेस कर रहा है, तो अगर वो फर्नीचर परचेस सेल करेगा तो वो उसके लिए गुड्स होंगे। इसके अलावा कोई भी एसेट परचेस करेगा, दिस इज नॉट कंसिडर्ड एज गुड। यहाँ पे साइकिल परचेस कर रहा है, वो साइकिल का बिजनेस नहीं करता, तो उसके लिए साइकिल हो गई असेट, और असेट के ट्रांजैक्शन परचेस बुक में रिकॉर्ड नहीं होते, तो दिस ट्रांजैक्शन विल नॉट रिकॉर्डेड इन परचेस बुक। नेक्स्ट इज 20 परचेस चेयर्स of rupees 10,000 at 10% trade discount and 5% cash discount from Rahim Furniture, and amount is paid immediately. Amount is paid immediately, that's why this is cash transaction. This will not recorded in purchase book. Next, date 25. An order with Shri Ambe Furniture Trading Company, 20 pieces table at 900 per piece and 5 pieces chairs at 700 per piece. Place an order. This is non-economic transaction, so this will be not recorded in purchase book. Next is purchased from Mahesh Bhai, 5 pieces table at 1,200 per piece, 12 pieces chairs at 600 per piece and 8 cupboards at rupees 2,500 per piece at 10% trade discount. बिल नंबर 500। यहाँ पे महेश भाई नेम ऑफ द पर्सन इज गिवन एंड द वर्ड कैश इज नॉट गिवन, दैट्स व्हाई दिस इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन एंड वी विल रिकॉर्ड इट। नाउ टोटल अमाउंट फाइंड करनी पड़ेगी। सबसे पहले टेबल 1,200 पर टेबल एंड पीस कितने परचेज किए हैं, 5, तो द टोटल अमाउंट फॉर टेबल इज 600। 10% ट्रेड डिस्काउंट देना है, तो एक एक जो गुड्स होगा उसके ऊपर इंडिविजुअली 10% हम डिस्काउंट
देंगे। टेबल के ऊपर अलग, चेयर्स की डिस्काउंट अलग एंड कपबोर्ड का डिस्काउंट भी अलग फाइंड करेंगे और उसमें से अलग डिडक्ट करेंगे। 6000 के टेबल्स, उसमें से 10% रेट डिस्काउंट, 10% of 6000 is 600, deducted from 6000 and we will get net amount 5400 for table. Similarly with chairs, 20 chairs, 600 per chair. So the total amount of 20 chair is 12,000, 10% rate discount. 12,000 minus 1200, net amount will be 10,800. Next, cupboard, 8 into 2500. So 20,000 minus trade discount 2,000. 10% of 20,000 is 2,000 and we will get net amount 18,000 for cupboard. यहाँ पे date 30, name of supplier is Mahesh Bhai, account, invoice number is 500, LF number is not given. टेबल की नेट अमाउंट है 5400, चेयर्स की नेट अमाउंट है 10,800 एंड कपबोर्ड की अमाउंट है 18,000. द टोटल ऑफ दीज थ्री विल बी 34,200. क्लियर? यहाँ पे सारे ट्रांजेक्शन होते हैं कंप्लीट. अब क्या करना है, टोटल क्रेडिट परचेज, ऐसे भी इंडिविजुअल चीज का भी टोटल करना है और टोटल अमाउंट का भी टोटल करना है. टोटल टेबल का क्रेडिट परचेज कितना हुआ 26,200. टेबल जितनी भी परचेज की सारी अमाउंट का टोटल 26,200. चेयर्स कितने की परचेज की टोटल 1 and 2 19,800. कपबोर्ड कितने के परचेज किए 15,000 एक, 27,000 दूसरा और 18,000 अलग, 60,000. एंड टोटल अमाउंट इज इसका प्लस इसका टोटल 1,06,000. टोटल प्रोडक्ट्स का भी टोटल 1,06,000 आएगा और टोटल अमाउंट का भी टोटल सेम आएगा. ये टैली हो जाएगा, मतलब आपका जो सम है वो है करेक्ट. तो इस तरह से अगर अलग अलग टाइप्स ऑफ गुड्स के परचेज किए गए हो तो इस तरह से वो रिकॉर्ड होंगे. आई होप ये सम आपको समझ में आ गया है. शांति से घर पे बैठ के इसको समझिए, रिवाइज कीजिए और अपनी नोटबुक में लिखिए ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच.